Hello students, a very welcome to all of you. So today in sequence and series, we are going to move on to the next exercise, that is exercise 2.2. Now this exercise is dependent on sum of GP. I've given you already the formulas in the theory. So let us begin with question number 1. For the following GPs, find SN. So in question number 1, I'll be doing example number 3 and example number 4. So let us begin. Solution for question 1, example 3. Write down the given sequence. So what is the given sequence? 0.7, 0.07, 0.007 and so on it continues. So it is already given in GP. So here, let us find out the value of A and the value of R, where you know that A is the first term. So what is the first term? First term is nothing but 0.7 and R is the ratio. It is common ratio. So next term upon the previous term, so 0.07 upon 0.7. Simplify. What we'll do? We will remove the decimal. So numerator में multiply by 100 करो, so it will be 7. Denominator में multiply by 100 करो, so 70. So it is nothing but 1 by 10. That is 0.1. R का value. But this value is less than 1. 0.1. And जो R का value है यहाँ पे आया 0.1 आया. It is less than 1. So recollect, you can see in your notebook in the theory part, I have given SN के 3 formulas है. Depending on the condition, अगर R का value greater than 1 है तो एक formula है, R का value less than 1 है तो दूसरा formula है, R का value equal to 1 है तो तीसरा formula है. SN के 3 formulas है. Now we'll be using, since R is less than 1, write it down on the next line. ऐसा लिखो. We know that Sn is equal to A into 1 minus R raised to n upon 1 minus R. ये फॉर्मूला यूज करेंगे. Why? Because R is less than 1. अभी कुछ नहीं करना है, सिर्फ A और R का वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करना है फॉर्मूला में. Write down therefore Sn is further equal to A का वैल्यू है 0.7, 1 minus R का वैल्यू is 0.1 whole raised to n upon 1 minus 0.1. Now we'll simplify as far as possible. So this is further equal to 0.7. This is 1 minus 0.1 raised to n upon 1 minus 0.1 is 0.9. अब इसको हम आगे सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं. तो दिस विल बी फर्दर रिटर्न एज 0.7 अपॉन 0.9 इंटू 1 माइनस 0.1 होल रेज टू n. इसको तो थोड़ा मैंने पहले रीअरेंज कर दिया. अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.7 अपॉन 0.9 विल बी रिटर्न एज 7/9 इंटू, ये वाला ब्रैकेट सेम रहेगा. This itself is our final answer and sum of all the terms it is. तो ये जो सीक्वेंस दिया है इसका अगर हमें सम फाइंड करना है तो दिस इज द प्रॉपर वे इट शुड बी डन. चलो मेक अ नोट ऑफ दिस. एग्जांपल नंबर 3, क्वेश्चन 1 का थर्ड एग्जांपल इज ओवर. देन विल मूव ऑन टू द फोर्थ एग्जांपल. चलो let's move on to the next example. Example number 4. This is the given sequence. वही Sn find करना है हमें. So A is the first term. So first term is nothing but √5. R find करना है. So it will be -5 upon √5. So that is nothing but -√5. Simplify करने के बाद आप किसी भी दो टर्म्स को डिवाइड करो, T2 upon T1 करो, T3 upon T2 करो, रेशियो इज गोइंग टू कम कॉमन, सेम रेशियो आएगा. अब नेगेटिव वैल्यू है
तो इट इज लेस देन वन है, तो वो लेस देन वन का ही फॉर्मूला यूज करेंगे Sn वाला। थोड़े डाउन वैल्यूज डाल दो। Sn इज इक्वल टू a का वैल्यू इज √5, 1 माइनस r का वैल्यू इज -√5 अपॉन 1 माइनस ऑफ -√5, क्लोज द ब्रैकेट। बस सिंप्लीफाई करके आंसर लिख दो। Therefore Sn is further equal to this √5 will remain same। यहाँ पे ये 1 माइनस ऑफ -√5 ये सेम रहेगा। डिनोमिनेटर में this minus of minus will become plus, so this will become 1 plus √5, close the bracket। This itself is the final answer, no more further simplification is required। No doubt, problem is over। Now let us move on to the next question, students. That is nothing but question number 2। See what is given। A का वैल्यू दिया है, R का वैल्यू दिया है, S6 हमें फाइंड करना है। Now you observe जो वैल्यू ऑफ R दिया है that is less than 1, तो Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे लेस देन 1 वाला। राइट डाउन A ब्रैकेट 1 माइनस R रेज टू n अपॉन 1 माइनस R, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। Therefore हमें क्या चाहिए, S6 मीन्स n का वैल्यू 6 डालना है। राइट डाउन S6 इज इक्वल टू A का वैल्यू कितना है 2, 1 माइनस R इज -2/3, तो ये हो जाएगा -2/3 रेज टू 6 अपॉन 1 माइनस ऑफ -2/3 एंड क्लोज द ब्रैकेट। कुछ नहीं किया है, A का वैल्यू 2, R का वैल्यू -2/3 और N का वैल्यू 6 सब्स्टिट्यूट किया है फॉर्मूला में। R लेस देन 1 है, तो लेस देन 1 वाला फॉर्मूला यूज किया। अभी हम सिंप्लीफाई करेंगे। Therefore S6 इज इक्वल टू 2 रिमेनिंग सेम, 1 माइनस, ये जो माइनस साइन है इसका पावर इवन है, तो अगर पावर इवन होता है तो वो प्लस हो जाएगा। एंड बाय लॉ ऑफ इंडाइसेस this will become 2 raised to 6 upon 3 raised to 6 whole upon, in the denominator minus of minus will become plus, तो ये हो जाएगा 1 plus 2/3, close the bracket। ध्यान रहे यहाँ पे माइनस ऑफ माइनस प्लस नहीं होगा, इसका पावर 6 है, तो माइनस का पावर 6 करेंगे तो प्लस हो जाएगा, इवन पावर है इसीलिए। Now let us simplify this further। Therefore S6 is equal to 2 remaining same, 1 minus 2 raised to 6, 2 raised to 4, 16, 16 4s are 64 upon 3 raised to 6, 3 raised to 4, 81 होता है, 81 into 9 is 729 upon 1 plus 2/3, तो 1 plus 2/3 का LCM लेंगे तो कितना आएगा 5/3, close the bracket। Now take LCM। S6 is equal to 2 into, तो ये हो जाएगा 729 minus 64 upon 729 whole upon 5/3 है ना, तो चलो एज इट इज रख देते हैं फिलहाल, तो whole upon 5/3 रिमेनिंग सेम। वैसे इसका भी रेसिप्रोकल हम डायरेक्टली ले सकते हैं। Therefore S6 is equal to 2 into 729 minus 64 करो, 9 minus 4 is 5, 12, तो ये हो जाएगा 665 by 729 into ये हो जाएगा 3/5, 5/3 का रेसिप्रोकल 3/5। Therefore S6 is further equal to 2 into, now just carry out the cancellation, तो ये 7 और ये जाएगा तो डिनोमिनेटर में तो बचेगा 243, दिस इज डिविजिबल, 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और ये 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 5 1s are 5 है ना, तो 1 रिमेनिंग, 5 3s are 15 एंड अगेन
3 जा 133 आएगा. Now 133 into 2 करो, so that is 266 upon 243 is the final answer, और यही S6 का वैल्यू है. Note down, problem is over. चलो नेक्स्ट करें. अच्छा, ये क्वेश्चन 2 का फर्स्ट एग्जांपल था, हाँ, जो S6 हमने फाइंड किया. नाउ अब यहीं पे स्पेस है मेरे पास, जानबूझ के मैंने ऐसा लिखा था उसको. नाउ लेट अस डू द सेकंड एग्जांपल. क्वेश्चन 2 का सेकंड करते हैं. देखो S5 का वैल्यू दिया है 1023, R का वैल्यू 4 दिया है, A का वैल्यू फाइंड करना है. R का वैल्यू 4 दिया है, इट इज ग्रेटर देन 1, है ना. तो राइट डाउन Sn का फॉर्मूला, Sn इज इक्वल टू A ब्रैकेट R रेज टू n माइनस 1 अपॉन R माइनस 1. ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे. n का वैल्यू 5 डालो, तो S5 इज इक्वल टू A इंटू R, तो ये हो जाएगा 4 रेज टू 5 माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 1. कुछ नहीं किया, n का वैल्यू 5 डाला और R का वैल्यू 4 डाला यहाँ पर फॉर्मूला में. देयरफॉर S5 का वैल्यू दिया है 1023 इक्वल टू A इंटू 4 रेज टू 5, 4 स्क्वायर इज 16, 16 का स्क्वायर इज 256, 256 इंटू 4 करो, 256 इंटू 4 करो, तो कितना मिलेगा आपको? ये आएगा आपको 1024, 1024 आएगा, माइनस 1 एज इट इज अपॉन 4 माइनस 1, ये हो जाएगा 3. वो कैलकुलेट नहीं किया, वो आप कर लो, ये 1024 आएगा, करके देख लो आप. नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, देयरफॉर 1023 इज इक्वल टू, चलो पहले ऐसे लिखता हूँ, इज इक्वल टू A इंटू 1024 माइनस 1 है, तो ये हो जाएगा 1023 डिवाइडेड बाई 3. ठीक है. नाउ व्हाट विल हैपन, क्रॉस मल्टीप्लाई करो या डायरेक्ट कैंसिल करो. ये 1023 कैंसिल हो गया, तो हाउ मच इज वैल्यू ऑफ A? वैल्यू ऑफ A इज 3. प्रॉब्लम इज ओवर. नोट डाउन. Now let us move on to question number 3. For a GP, A का वैल्यू दिया है, R का वैल्यू दिया है, Sn दिया है, N फाइंड करना है. चलो तो राइट डाउन. अभी आप देखो यहाँ पे R का जो वैल्यू है वो 3 दिया है, विच इज ग्रेटर देन 1, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. सिंपल है प्रॉब्लम, लिख लीजिए Sn इज इक्वल टू A ब्रैकेट R रेज टू n माइनस 1 अपॉन R माइनस 1. देयरफॉर Sn, तो Sn कितना दिया है 243 इज इक्वल टू A का वैल्यू 2, R का वैल्यू 3, 3 रेज टू n माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1. चलो राइट डाउन. देयरफॉर 243 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 रेज टू n माइनस 1 तो सेम रहेगा, अपॉन दिस विल बिकम 2. अब ये 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा. देयरफॉर व्हाट इज लेफ्ट आउट, 242 दिया है, सॉरी, Sn is given as 242, not 243. 242 दिया हुआ है, तो 242 is further equal to 3 raised to n minus 1 आएगा. Now this minus 1 will be shifted over here, so plus 1, तो 242 plus 1 is 243. 243 is equal to 3 raised to n आएगा. Now we have to express this number as in 3 का पावर, तो 3 raised to 5 243 होता है, 3 raised to n remaining same. अभी दोनों पावर्स को हम कंपेयर करेंगे, तो हाउ मच इज वैल्यू ऑफ n? वैल्यू ऑफ n इज 5. प्रॉब्लम इज ओवर. चलो नोट डाउन.
नाउ क्वेश्चन 3 का फर्स्ट हो गया. नाउ लेट अस डू क्वेश्चन 3 का second example. What is given for a GP? Sum of the first three terms is 27. तो लिखो given sum of the first three terms. तो S3 कैसे आएगा? T1 plus T2 plus T3. Sum of the first three terms is given as 125. मतलब S3 का वैल्यू 125 दिया है. Sum of the next three terms is 27 given. तो sum of the next three terms मतलब क्या दिया हुआ है? T4 plus T5 plus T6 इसका sum is given as 27. So therefore T1 plus T2 plus T3 plus चलो सारे टर्म्स लिख देता हूँ. T4 plus T5 plus T6 इसका जो सम है, this sum is nothing but equal to 125 plus 27 आएगा. Sum of the first three terms and the next three terms, so 127 plus 125 है ना. तो therefore ये क्या हो जाएगा? This will become nothing but S6. So S6 is 125 plus 27. So 125 plus 27 is nothing but 152 हो जाएगा. Try to understand the question. Sum of the first three terms 125 दिया है. Sum of the next three terms 27 दिया है. तो T1 से T6 का जो sum है that will be nothing but sum of the first 6 terms. तो कैसे मिलेगा? 125 plus 27 that is nothing but 152. तो S3 125 है, S6 152 है. हमें क्या फाइंड करना है? हमें R का वैल्यू निकालना है. चलो तो प्लीज नोट डाउन टिल हियर. अभी हम क्या करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू यूज SN का फॉर्मूला. So write down. We know that on the next line ऐसा लिखो. We know that SN is equal to A bracket R raised to N minus 1 upon R minus 1. ये फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं. तो therefore अभी पहले क्या है? S6 ये यूज कर लेते हैं. तो N का वैल्यू 6 डालो. तो therefore S6 will be equal to what? So what will get over here? A into R raised to N. R का तो वैल्यू निकालना है. तो R raised to 6 minus 1 upon R minus 1. अभी S6 is 152. तो लिखो therefore 152 is equal to A bracket R raised to 6 minus 1 upon R minus 1. इसको आप दे दो इक्वेशन नंबर 1. दिस वन. अभी क्या करना है? S3 125 दिया है, तो इसमें N का वैल्यू 3 डालो. तो therefore S3 is equal to what? A bracket R raised to 3 minus 1 upon R minus 1. We'll get this. But S3 sum of the first three terms कितना है? 125. तो लिखो क्या मिलेगा? 125 is equal to A R cube minus 1 upon R minus 1. इसको आप दे दो इक्वेशन नंबर 2. आई रिपीट, क्या किया? SN का फॉर्मूला लिखने के बाद एक बार N का वैल्यू 6 डाला तो S6 मिला. उसके बाद इसी फॉर्मूला में N का वैल्यू 3 पुट किया तो S3 मिला. वी हैव गॉट इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, चलो यहाँ तक लिख लो आप. नाउ वहां पे आ जाएगा, बट आई नीड टू रब दिस ऑफ. ये वाला प्रोसीजर ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए लिखा है मैंने, तो इस प्रोसीजर को मैं रब कर देता हूँ बिकॉज आई नीड स्पेस. तो इसके बाद डायरेक्टली ये S6 152 हमें मिल जाता है.
जैसे आपने वो ऑलरेडी लिख लिया ही होगा. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू डिवाइड दीज टू इक्वेशंस. इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन नंबर 2 करेंगे, है ना. तो लिखो आफ्टर दिस 1 अपॉन 2. तो 1 अपॉन 2 करेंगे तो क्या मिलेगा, लिखो देयरफॉर 152 अपॉन 125 इज इक्वल टू, ठीक है, राइट डाउन a ब्रैकेट r रेज टू 6 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 एंड ये a r क्यूब माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 आएगा. डिवाइड किया, इक्वेशन 1 दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस आएगा. ठीक है, चलो राइट डाउन. अब यहाँ पे क्या होगा, ये a इसके साथ कैंसिल, ये r माइनस 1 इसके साथ कैंसिल. तो व्हाट इज लेफ्ट आउट, 152 अपॉन 125 इज इक्वल टू r रेज टू 6 माइनस 1 अपॉन r रेज टू 3 माइनस 1 बचेगा. नाउ द न्यूमरेटर r रेज टू 6 कैन बी रिटर्न एज r cube the whole square by the law of indices, and ये 1 है बट अंडरस्टूड है ये 1 रेज टू 6 है. तो 1 रेज टू 6 को कैसे लिखेंगे, 1 क्यूब का स्क्वायर एंड द डिनोमिनेटर remains the same. लेफ्ट हैंड साइड इज 152 अपॉन 125. अब न्यूमरेटर में हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. देखो दिस इज वर्किंग एज a and this is working as b. a square minus b square, a minus b into a plus b होता है, ठीक है ना. तो लिखो therefore 152 upon 125 is equal to, तो ये हो जाएगा r क्यूब माइनस 1 अपॉन r क्यूब प्लस 1. हाँ अंडरस्टूड है. अच्छा 1 क्यूब अंडरस्टूड है, लिखने की जरूरत नहीं, बट चलो ठीक है लिख देता हूँ आपके रेफरेंस के लिए. अपॉन r क्यूब माइनस 1 रिमेनिंग सेम. न्यूमरेटर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया. नाउ ये r क्यूब माइनस 1 और ये r क्यूब माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा. तो क्या बच गया, लिखो 152 अपॉन 125 इज r क्यूब प्लस 1. अब 1 क्यूब मतलब 1 है, अंडरस्टूड है. ये 1 यहाँ पे शिफ्ट कर दो. तो देयरफॉर r क्यूब इज इक्वल टू व्हाट, 152 अपॉन 125 माइनस 1 हो जाएगा. एलसीएम लेके सॉल्व करो तो 152 माइनस 125, तो ये आएगा 27 बाई 125 विच इज नथिंग बट 3 बाई 5 द होल क्यूब. 3 बाई 5 का क्यूब है वो. आई होप इट इज विजिबल टू यू, है ना. 3 बाई 5 द होल क्यूब इट इज. तो r क्यूब इज 3 बाई 5 द होल क्यूब. तो r का वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, r का वैल्यू इज 3 बाई 5. क्या चाहिए था हमें, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ r. वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ r, प्रॉब्लम इज ओवर. चलो नोट डाउन, ये प्रोसीजर आप लिख लो पूरा एज इट इज. यहाँ पे वो पार्ट था, चाहिए तो मैं लिख देता हूँ वापस इसको, कि t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 प्लस t5 प्लस t6, दिस वाज इक्वल टू 125 प्लस 27 था, ऐसा वो 152 आ गया था हमें. तो t1 टू t6 इट इज सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म्स. चलो नोट डाउन. Now let us move on to question number 4. अब देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया स्टूडेंट, फॉर अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फोर्थ टर्म 16 है, नाइन्थ टर्म इज 512 दिया है, और हमें S10 मतलब सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स हमें फाइंड करना है. तो ऑब्वियसली उसके लिए हमें SN का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. ठीक है, नाउ SN का फॉर्मूला यूज करने के लिए हमें A और R का वैल्यू लगेगा. तो लेट अस फर्स्ट यूज दिस कंडीशन. तो यहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम Tn का फॉर्मूला यूज करेंगे. ठीक है, तो चलो राइट डाउन पहले. तो वी नो दैट Tn इज इक्वल टू A इंटू R रेज टू n माइनस 1, ये फॉर्मूला है.
अभी T4, तो पहले n इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे, वैसा लिखो चाहिए तो पुट n इज इक्वल टू 4, तो देयरफॉर T4 is equal to what? A into R raised to 4 minus 1 is 3. अब T4 कितना दिया है? 16. So therefore 16 is equal to A into R cube. इसको आप दे दो, चलो इसको ऐसा करो, इसको इक्वेशन 1 दे दो, इसको इक्वेशन 2 दे दो। R is equal to 4 पुट किया यहाँ पे, सॉरी N is equal to 4 पुट किया यहाँ पे। अभी T9, तो n का वैल्यू 9 पुट करना है। Put n is equal to 9 in equation 1. Therefore T9 is equal to what? A into R raised to 9 minus 1, 8 हो जाएगा। T9, how much is T9? 512. So 512 is equal to A into R raised to 8. ये बन गया इक्वेशन नंबर 3। अब डिवाइड करना है दोनों इक्वेशंस को। अब आप 2/3 करो या 3/2 करो, उससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2/3 करते हैं। इक्वेशन 2 अपॉन डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 3, तो 16/512 दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो a into r cube अपॉन a into r raised to 8, a cancel, so this is further equal to r cube upon r raised to 8, तो ये 1 upon r raised to 5 बचेगा by the law of indices, and this will be 1 upon 32। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो r raised to 5 is equal to 32 मिलेगा। 32 is 2 का पावर 5, so therefore r का वैल्यू इज 2। बट अभी r का जो वैल्यू है वो तो मिल चुका है हमें, बट a का भी तो वैल्यू चाहिए, ऐसे फाइंड करना है तो r का वैल्यू यू सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 2, वैसा लिखो, पुट r इज इक्वल टू 2। चलो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, फिर अब नेक्स्ट पुट r is equal to 2 in equation 2, so therefore 16 is equal to a into r का वैल्यू 2 डालो, तो 2 क्यूब इज 8, तो a का वैल्यू 2 आ गया। अभी a और r का वैल्यू मिल गया। तो प्लीज चेक, जो r का वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 है, 1 से बड़ा है, तो राइट डाउन we know that Sn is equal to a bracket r raised to n minus 1 upon r minus 1, ऐसा आएगा। बट हमें क्या फाइंड करना है? S10 फाइंड करना है, तो therefore S10 is equal to a का वैल्यू इज 2, r का वैल्यू इज ऑल्सो 2, तो ये आ जाएगा 2 raised to 10 minus 1 upon 2 minus 1, therefore S10 is further equal to 2 into, ठीक है। अभी यहाँ पे 2 raised to 10 आप सिंप्लीफाई करो, -1 रिमेनिंग सेम अपॉन 2 minus 1 is 1। चलो नाउ आई गिव यू टाइम ऑफ 1 मिनट, 2 raised to 10 सिंप्लीफाई करो और लिखो कितना होता है। चलो स्टार्ट राइटिंग, तो पहले उसके पहले यहाँ तक लिख लो सब लोग। चलो तो आई होप एटलीस्ट यहाँ तक तो लिखे हो चुका होगा आपका। चलो अभी 2 raised to 10, तो 2 raised to 10 होता है 1024। देखो 2 raised to 5, 2 raised to 5 is 32, तो 32 into 32 करो आप, तो आपको वो मिलेगा। नाउ व्हाट विल हैपन, तो देयरफॉर S10 इज फर्दर इक्वल टू, ठीक है, ये तो मैं रब कर देता हूँ, ये तो वर्किंग जस्ट आपको बताया मैंने। तो कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज होते हैं कुछ पावर्स के, वो आप याद रख सकते हो। तो देयरफॉर S10 इज फर्दर इक्वल टू 2 इंटू, ये हो जाएगा 1023, 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 2046 इज द आंसर। तो S10 इज
2046. Problem is over. Note down. Okay, students, let's move on to the next question. Question number 4. Find the sum to n terms. इसका Sn हमें फाइंड करना है. चलो रेड डाउन. सॉल्यूशन फॉर एग्जांपल नंबर 4. अब ये फोर्थ का फर्स्ट कर रहे हैं, फोर्थ का सेकंड सिमिलर है. नाउ अब ऐसे जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, इनका प्रोसीजर डिफरेंट है और वो हमें याद रखना है. सिंपल है, डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन. रेड डाउन. लेट Sn इज इक्वल टू, इसका सम फाइंड करना है. 3 plus 33 plus 333 plus 3333 and so on up to n terms. ऐसा चलते रहेगा. अभी सबसे पहले हमें क्या करना है, we will take 3 common. So this is further equal to 3 common ले लेंगे. 3 common from each and every term. तो क्या होगा, 1 प्लस यहाँ से 11 बचेगा, यहाँ से 111 will be left out, यहाँ से 1111 will be left out. ऐसा चलते रहेगा up to n terms. क्या किया, 3 कॉमन निकाला. ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे रीजन है. अब इसके बाद आफ्टर दिस स्टेप we will multiply and divide by 9. 9 से मल्टीप्लाई करना है और 9 से डिवाइड करना है. बिकॉज अगर आप देखोगे ये सीरीज, इसके जो टर्म्स है वो जीपी में नहीं है, दे आर नॉट इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. तो उसको हमें थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. राइट डाउन. 3/9, 9 से डिवाइड किया तो सबको 9 से मल्टीप्लाई भी करना है. मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 9. तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 into 9 9 प्लस ये हो जाएगा 99 प्लस 999 प्लस 9999. ऐसा चलते रहेगा n टर्म्स तक. तो ये स्टेप इंपॉर्टेंट है. तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया स्टूडेंट्स, Sn फाइंड करना है इस सीरीज का. तो सबसे पहले 3 कॉमन लिया, फिर उसके बाद क्या किया, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 9. इट इज सेम, सारे प्रॉब्लम्स के लिए यही प्रोसीजर करना है. नाउ नेक्स्ट स्टेप लिखो, दिस इज फर्दर इक्वल टू 3/9 विल रिमेन सेम. अच्छा 3/9 को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं. हाँ तो चलो ऐसे ही रखते हैं इसको फिलहाल. तो 3/9 रिमेनिंग सेम. तो 9 विल बी रिटर्न एज 10 minus 1. 99 will be returned as 100 minus 1. 999 will be returned as 1000 minus 1. 9999 will be returned as 10,000 minus 1. and ये कंटिन्यू होते रहेगा till n terms. n terms तक ऐसा चलते रहेगा ये प्रोसीजर. now what we do, थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं. देखो अभी हम क्या करेंगे, ये वाले जो टर्म्स है 10, 100, 1000, 10,000, ये सब हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे. सॉरी डाउन. 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस 10,000, ये एक ब्रैकेट में डालो आप. फिर उसके बाद ये वाले जो टर्म्स है सारे -1, इन सब में से माइनस साइन कॉमन आ जाएगा. तो 1. अच्छा वन मोर थिंग, दिस इज अप टू n टर्म्स ना, ऐसा है. 10,000 के बाद दिस इज प्लस डॉट 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 अप टू n टर्म्स तक ये ऐसा चलते रहेगा. फिर इनमें से जब माइनस साइन कॉमन निकालेंगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स. ये भी कंटिन्यू होगा. अब ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दो, ऐसा होगा. तो इसको हमने थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया है टर्म्स को. चलो राइट डाउन टिल हियर एवरीवन, देन विल मूव अहेड. ठीक है. नाउ व्हाट डू वी ऑब्जर्व, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो ब्रैकेट है इसके जो टर्म्स है दे आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. देखो हियर
अब इसके नीचे ही लिखो, तो ऐसा एरो डाल लो। हियर द वैल्यू ऑफ ए इज 10 एंड द वैल्यू ऑफ आर, किसी भी दो टर्म्स को आप डिवाइड करो, 100/10, तो 100/10 इज 10। आर का वैल्यू 10 आ गया, 1 से बड़ा है। ये वाला ब्रैकेट देखो आप, यहाँ पे फॉर दिस ब्रैकेट हियर the value of a is 1 and the value of r is also equal to 1. अभी हम Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे r ग्रेटर देन 1 है, तो Sn का फॉर्मूला ग्रेटर देन 1 वाला, यहाँ पे r इक्वल टू 1 है, तो इक्वल टू 1 वाला Sn का फॉर्मूला। राइट डाउन 3/9 रिमेनिंग सेम। अब रिकलेक्ट करो, चाहिए तो फॉर्मूला लिख देता हूँ। देखो क्या फॉर्मूला है, Sn इज इक्वल टू a ब्रैकेट r रेज टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ये r ग्रेटर देन 1 के लिए फॉर्मूला है, एंड दिस इज इक्वल टू a इंटू n। ये है r इक्वल टू 1 के लिए फॉर्मूला। तो r ग्रेटर देन 1 के लिए तो ये वाला फॉर्मूला आएगा। तो a का वैल्यू डालो यहाँ पे, चलो राइट डाउन 10 ब्रैकेट 10 रेज टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 1, क्लोज द ब्रैकेट। इस ब्रैकेट के लिए मतलब ये a और r है, ये फॉर्मूला यूज किया हमने, माइनस फॉर दिस ब्रैकेट a का वैल्यू 1 है, r का वैल्यू 1 है ना, तो a का वैल्यू 1 डालो, तो 1 इन तो ये 1 इंटू n हो गया अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। देखो a का वैल्यू 1 डाला, n रिमेनिंग सेम, तो 1 इंटू n। चलो तो आई रब दिस ऑफ। अभी इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे एज फार एज पॉसिबल। चलो आप ये लेफ्ट हैंड साइड में लिखते चलो, दिस इज एस एन, Sn, ये Sn, it is sum of the in terms, so therefore Sn is equal to, ये 3/9 सेम रहेगा। अच्छा 10 माइनस 1, तो ये 9 हो जाएगा, तो दिस विल बिकम 10/9, दिस अपॉन दिस, तो 10/9 इंटू तो आई वाज सेइंग 10/9 ये आएगा। ये जो ब्रैकेट है ये एज इट इज रहेगा, 10 रेज टू n माइनस 1 माइनस 1 इंटू n इज n, क्लोज द ब्रैकेट। अब ये दोनों टर्म्स का हम एलसीएम ले सकते हैं, दिस होल टर्म माइनस n, इसका एलसीएम ले सकते हैं। तो व्हाट विल दिस फर्दर बिकम, चलो अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये इसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू कर देता हूँ मैं। चलो ऐसे लिखता हूँ, देयरफॉर Sn इज फर्दर इक्वल टू, ये स्टेप के बाद इधर 3/9 रिमेनिंग सेम। अब ये 9 इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सी व्हाट विल हैपन, 10 इंटू 10 रेज टू n माइनस 1 रिमेनिंग सेम। देखो 10 इंटू दिस इज सेम, माइनस 9n अपॉन 9, ये एलसीएम ले लिया मैंने, ये दोनों टर्म्स का एलसीएम लिया तो वो स्टेप मिला। अच्छा अब एक और एक चीज कर सकते हैं, ये 9 इंटू 9 यू कैन मल्टीप्लाई, तो देयरफॉर Sn इज फर्दर इक्वल टू, ये हो जाएगा 3/81 इंटू ब्रैकेट में क्या बचेगा, 10 ब्रैकेट 10 रेज टू n माइनस 1 minus 9n will be left out. This itself is the final answer. वैसे हो सकता है कि टेक्स्ट बुक में ये आंसर दिया होगा या ये आंसर दिया होगा या ऐसा सिंप्लीफाई करके लिखा होगा, तो जितना मैक्सिमम पॉसिबल है उतना आप सिंप्लीफाई करके उसको लिख दो, ठीक है ना। चलो नोट डाउन टिल हियर, प्रॉब्लम इज ओवर। ये स्टेप के बाद यहाँ पे कंटिन्यू किया है मैंने, नोट डाउन। तो ऐसे जितने भी प्रॉब्लम्स है वो सभी प्रॉब्लम का सेम प्रोसीजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप टेक्स्ट बुक में देखोगे तो इट इज गिवन नथिंग बट, यहाँ पे 8 + 88 + 888 वो वाला प्रॉब्लम दिया है,
तो कुछ नहीं करना है, उसमें से आप 8 कॉमन निकालोगे। जैसे हमने यहाँ से 3 कॉमन निकाला था, यू विल टेक 8 कॉमन, तो जिधर भी 3 है ना उधर आप 8 लिखो, बाकी पूरा सॉल्यूशन सेम है। जैसे यहाँ पे 3 कॉमन निकाला, वहां पे 8 कॉमन निकाला, 7 रहेगा तो 7 कॉमन निकालने का, 6 रहेगा तो 6 कॉमन निकालने का। अच्छा 9 रहेगा, अगर सपोज 9 प्लस 99 प्लस 9 99 दिया है, तो फिर ये इतना सॉल्यूशन, ये जो ब्रैकेट वाला सॉल्यूशन है ना उतना ही लिखने का। फिर अगर कोई दूसरा नंबर है तो फिर कॉमन निकाल के यहाँ पे जो प्रोसीजर फॉलो किया है, सेम प्रोसीजर इज टू बी फॉलोड फॉर ऑल सिमिलर टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स। चलो लिख लो। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द 6th क्वेश्चन। अच्छा प्रीवियस में उसमें क्वेश्चन नंबर 4 रखा था, एक्चुअली दैट वाज क्वेश्चन नंबर 5, वो मैं नंबर चेंज करना भूल गया था। जो प्रीवियस क्वेश्चन है दैट वाज क्वेश्चन नंबर 5 था, और हम पहले कर चुके थे। नाउ लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, और इसका हम फर्स्ट एग्जांपल कर रहे हैं। सेम प्रोसीजर है, कल इतना डिफरेंस है कि ये प्रॉब्लम जो है वो डेसिमल में है। लेट Sn इज इक्वल टू 0.4 plus 0.44 plus 0.444 and so on up to in terms, ऐसा ये चलते रहेगा। Sn फाइंड करना है। Now we'll take 4 कॉमन, तो Sn is equal to 4 कॉमन निकाल लेंगे, तो 0.1 plus 0.11 plus 0.111 and so on up to इन टर्म्स तक ऐसा चलते ही रहेगा। अब वही मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 9 करेंगे, देयरफॉर Sn इज इक्वल टू 4/9। 9 से डिवाइड किया, अब 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0.9 प्लस 0.99 प्लस 0.999 ऐसा चलते रहेगा अप टू इन टर्म्स। तो ये स्टेप के बाद ये स्टेप कैसे आया, क्या किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 9, कंपल्सरी है, करना पड़ेगा। नाउ इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, तो देयरफॉर Sn is further equal to 4/9 remaining same. Now 0.9 को कैसे लिखेंगे, 1 minus 0.1 is 0.9, 1 minus 0.01 is 0.99, फिर उसके बाद 1 minus 0.001 is 0.999, और ऐसा ये कंटिन्यू होते रहेगा अप टू n टर्म्स, ऐसा चलते रहेगा n टर्म्स तक। क्लोज द स्क्वायर ब्रैकेट। अभी हम टर्म्स को थोड़ा रीअरेंज कर लेंगे, ये जितने भी वंस है we will put them into one bracket, therefore Sn is further equal to 4/9 remaining same, 1 plus 1 plus 1 so on up to n टर्म्स, ये सब एक ब्रैकेट में आ गया। फिर ये जितने भी टर्म्स है -0.1 -0.01 माइनस वाले जितने भी टर्म्स है सब में से माइनस साइन कॉमन आ जाएगा, तो माइनस साइन कॉमन आ गया, 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.001 प्लस कंटिन्यू होते रहेगा n टर्म्स तक, क्लोज द स्क्वायर ब्रैकेट। ध्यान से देखो, ये ब्रैकेट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है और ये वाला ब्रैकेट भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। तो फॉर दिस ब्रैकेट हियर value of a is 1 and value of r is also 1, फर्स्ट टर्म 1 है, रेशो कोई भी दो टर्म्स कंसेक्यूटिव नेक्स्ट अपॉन प्रीवियस करो, r1 आएगा। ये वाला ब्रैकेट देखो, फॉर दिस ब्रैकेट हियर द वैल्यू ऑफ a is 0.1 and r the common ratio is 0.01 upon 0.1, कोई भी दो टर्म्स को आप डिवाइड करो नेक्स्ट अपॉन प्रीवियस, so what will this give you,
तो एक डेसिमल यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये एक डेसिमल यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो दिस इज 0.1। तो ये जो r का वैल्यू है वो 1 से छोटा है, तो वो SN का फॉर्मूला यूज करना है ना हमें। देयरफॉर SN इज इक्वल टू 4/9, r का वैल्यू 1 है इधर, तो व्हाट इज द फॉर्मूला, n इंटू a, तो n इंटू a का वैल्यू 1 है, माइनस यहाँ पे SN का फॉर्मूला a इज 0.1 ब्रैकेट 1 माइनस r रेज टू n अपॉन 1 माइनस r। इसके लिए जो SN का फॉर्मूला है, देखो r लेस देन 1 है, अब क्योंकि r लेस देन 1 है तो SN का फॉर्मूला होता है a 1 माइनस r रेज टू n अपॉन 1 माइनस r। ये फॉर्मूला हमने इस ब्रैकेट के लिए यूज किया, ये स्टेप मिला। बस अब क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है हमें जब तक पॉसिबल है या जहां तक पॉसिबल है। तो SN इज फर्दर इक्वल टू 4/9 रिमेनिंग सेम, n इंटू 1 इज n, माइनस 1 माइनस 0.1 इज 0.9, तो ये 0.1 अपॉन 0.9 हो जाएगा, इंटू 1 माइनस 0.1 रेज टू n विल रिमेन सेम, क्लोज द ब्रैकेट। ये एज इट इज रहेगा, 1 माइनस 0.1 0.9 हो गया, थोड़ा डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करो ये डेसिमल वाले को, ठीक है। चलो राइट डाउन, इसके आगे मैं फिर वहां पे कंटिन्यू करूंगा, आई नीड स्पेस टू राइट डाउन। तो ये जो फॉर्मूला है इसको मैं रब कर देता हूँ। तो व्हाट विल हैपन, इसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ मैं। तो देयरफॉर आफ्टर दिस स्टेप SN is further equal to 4/9 remaining same, ये हो जाएगा n माइनस 1/9 इंटू 1 माइनस 0.1 रेज टू n, ऐसा हो जाएगा ये। 0.1 अपॉन 0.9 इज 1/9। नाउ वी कैन टेक LCM, तो SN इज इक्वल टू 4/9 ब्रैकेट, ये हो जाएगा 9n माइनस 1 माइनस 0.1 रेज टू n होल अपॉन 9 हो जाएगा। ये दोनों टर्म्स का हमने LCM निकाल लिया। अब क्या कर सकते हैं, 9 9 जा 81, तो देयरफॉर SN इज इक्वल टू हो जाएगा 4/81 इंटू ब्रैकेट 9n माइनस 1 माइनस 0.1 रेज टू n, क्लोज द ब्रैकेट, and this itself is the final answer. Problem is over. Note down. तो ऐसे जितने भी प्रॉब्लम्स है दे आर टू बी डन इन द सिमिलर वे। जैसे यहाँ पे 0.4, तो 4 कॉमन निकाला, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 9 किया। अगर सपोज ये यहाँ पे ऐसा होता, जैसे आपके एक्सरसाइज में क्या दिया है क्वेश्चन में, नेक्स्ट वाला 0.7 दिया है, 0.7 प्लस 0.77 एंड सो ऑन, तो उसमें से हम 7 कॉमन निकालेंगे, तो वही सेम चीज रहेगी, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 9, तो पूरा प्रोसीजर सेम। जिधर 4 है उधर आप 7 लिखोगे, बस दैट्स इट। पूरी जगह पे जिधर 4 है उधर 7 आ जाएगा, आपको आंसर आपका मिल जाएगा। So this is how these problems are to be done. Please note down. Question 6 is also over. Okay, students. So let us move on to question number 7. क्या पूछा है वो? Find the sum to n terms of the given sequence. So sum find करना है, मतलब it is SN. So write down solution. Here the first term is 0.5 and ratio any two terms, so 0.05 upon 0.5. You divide any two consecutive terms, तो रेशियो आपको सेम मिलने वाला है, तो ये डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, तो 1 डेसिमल शिफ्टेड ओवर हियर, तो 0.5 और ये 5 हो जाएगा, और एक डेसिमल शिफ्ट करो आप एंड सिंप्लीफाई टू फाइंड आउट दिस वैल्यू। चलो डू इट, करो ये सिंप्लीफाई आगे एंड टेल मी हाउ मच विल बी द वैल्यू ऑफ r, है ना। तो क्या आएगा ये वैल्यू, दिस इज
दिस विल गिव अस 1/10 0.1 आएगा। कैसे? और एक डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, तो ये 5/50, तो दैट इज 1/10, तो दैट इज नथिंग बट 0.1। पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन दे दिया मैंने। अब देखो r का वैल्यू 0.1 है, 0.1, दिस वैल्यू इज लेस देन 1, तो Sn का फॉर्मूला जो लेस देन 1 वाला है वो यूज करेंगे। Write down, we know that Sn is equal to a bracket 1 minus r raised to n upon 1 minus r। सिंपल प्रॉब्लम है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। Therefore Sn is further equal to a का वैल्यू इज 0.5 into 1 minus 0.1 raised to n upon 1 minus 0.1 हो जाएगा। This is how we'll be getting। सिंप्लीफाई करो तो 0.5 into 1 minus 0.1 raised to n upon 1 minus 0.1 होता है 0.9। इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिखो, 0.5 upon 0.9 into 1 minus 0.1 raised to n हो जाएगा। 0.5 upon 0.9 इस डेसिमल वाला जो टर्म है इनको आप सिंप्लीफाई करो, so this will be written as 5/9 into 1 minus 0.1 raised to n। This itself is the final answer। and इनका जो सम है, ये जो सीक्वेंस दिया है ना, इसका जो सम है, सारी टर्म्स का जो सम है वो ये है। प्रॉब्लम इज ओवर। Therefore Sn is equal to this। Note down। ओके स्टूडेंट्स, तो एक्सरसाइज 2.2 के हमने फर्स्ट 7 क्वेश्चंस किए हैं। अब इसमें जो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स है उनको आपको सिमिलरली आपको करना है। तो रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ द एक्सरसाइज 2.2 we will continue in the next lecture, but by that time please keep studying and keep watching my YouTube channel। Thank you very much।